Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we discussed about moon. Okay. In today's class, we will discuss about phases of moons. जो moon है, उसकी जो phases हैं, उसके बारे में हम discuss करेंगे. At last में जो phases of moon का एक animated video है, उसको भी हम देखेंगे. ओके, वैन वी लुक एट अ मून, जब हम क्या करते हैं बच्चों, मून के ऊपर देखते हैं. इट अपेयर टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, वो हर नाइट अपनी शेप को क्या करता है, चेंज करता है. समटाइम्स इट इज़ राउंड बॉल, कभी हमें वो राउंड बॉल दिखता है, समटाइम्स वो हमें शी शेप का दिखता है. एंड डिसअपेयर कम्प्लीटली, और उसका जो बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है, हमें नहीं दिखता है. दिस हैपन बिकॉज we see only that part of the moon that reflect the sun's light. ये इसलिए होता है क्योंकि मून के जिस पार्ट पर सन का लाइट पड़ता है, केवल हम उसी पार्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं. एज द मूव अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट पर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है. दिस वेरिड शेप ऑफ मून आर कॉल्ड फेसिस ऑफ मून, और ये जो अलग अलग मून के शेप हैं इनको हम बोलते हैं फेसिस ऑफ मून. ओके, नाउ एक्लिप्स. एक्लिप्स क्या होता है? एन एक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिना इन विच द सेलेस्टिक ऑब्जेक्ट्स, इनको हम कह सकते हैं, और अ पोर्शन ऑफ इट बिकम टेम्पररली इनविजिबल, जो कुछ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है. एज इट इज हैपन बाय द शैडो. ओके, तो शैडो ऑफ अनदर celestial body, it happen when these three celestial objects are in straight line. The revolution of earth around the sun and revolution of moon around the earth cause lunar and solar eclipse. ओके, इनके रेवोल्यूशन की वजह से ही सोलर और लूनर एक्लिप्स जो है वो हो पाता है. ओके, नाउ लूनर एक्लिप्स क्या होता है? लूनर एक्लिप्स व्हेन द अर्थ कम बिटवीन द सन एंड मून, जो अर्थ है जब वो सन और मून के बीच में आता है तो दैट इज कॉल्ड लूनर एक्लिप्स. द शैडो ऑफ अर्थ फॉल ऑन मून, जो अर्थ का शैडो है वो मून के ऊपर गिरता है, इसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स. ओके, लूनर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल इन विच अ पार्ट ऑफ मून मे बी विजुअल, और टोटल इन विच द मून इज नॉट विजुअल एट ऑल. इसके अंदर जो मून है वो पूरा दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है. This type and duration of lunar eclipse depend on the position of the moon and orbit. ये जो मून है उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं. ओके, ये लूनर एक्लिप्स का डायग्राम है. नाउ सोलर एक्लिप्स. ओके, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, इसके बारे में भी बच्चों हम एक एक एनिमेटेड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, अंडरस्टूड? तो इन वीडियोस को देखते हैं. The moon revolves around the earth in a fixed orbit. The moon does not have its own light. Sun gives light to the moon. When the moon is between the earth and the sun, we cannot see the moon at all. This is because the side of the moon facing the earth does not get sunlight. This is called the new moon. After 2 to 3 days, we can see some part of the moon. This phase is called the waxing crescent. As the moon is gaining light, that is, expanding in illumination, we use the term waxing.
About a week after the new moon, we can see half of the moon. This phase is called first quarter. Two or 3 days after the first quarter, more than half of the moon is visible. This phase is called the waxing gibbous. About 2 weeks after the new moon, we can see the full moon. This is because the full side of the moon facing the Earth gets sunlight. Now, the moon begins its return journey from the full moon to the new moon. The next phase is called the waning gibbous. As the moon is now losing light, that is, decreasing in illumination, we use the term waning. The next phase is the last quarter, followed by the waning crescent. When the moon comes back between the Earth and the Sun, it enters the new moon phase again. Number of days between two new moons is 29, as the moon takes approximately 29 days to revolve once around the Earth. These changing shapes of the moon are called phases of the moon. प्लेनेट पर रहते हैं, उसका नाम है द अर्थ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. यह अर्थ के चारों ओर घूमता है. सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है. मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमती है. रेवोल्यूशन के दौरान कभी कभी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. सच अ सिचुएशन इज टर्म्ड एज एन एक्लिप्स. इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में. तो चलिए बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में. किसी न्यू मून के एक स्पेशल डे पर सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं. इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है. इसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. जाहिर है, सोलर एक्लिप्स पर मून सन और अर्थ के बीच में आता है. द शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डार्कर पार्ट कॉल्ड अम्ब्रा एंड लाइटर पार्ट कॉल्ड पेनम्ब्रा. सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है, नहीं तो सन की लाइट हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है. सपोज हमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्ब्रा से सोलर एक्लिप्स देखने लगे. तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है. इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से में खड़े हो जाते हैं और एक्लिप्स देखते हैं, तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे. इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स. अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की. किसी फुल मून की एक स्पेशल नाइट को सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं. इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है. इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है. जाहिर है, लूनर एक्लिप्स पर अर्थ सन और मून के बीच आती है. यदि मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्ब्रा से, तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स. लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है, तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स. टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है. क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है. अर्थ की एजेस से जब सन की लाइट पास होती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं. बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है.
रेड लाइट के कारण मून रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ एक्लिप्स। हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट पर कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है, यानी झुकी है। इससे अर्थ, सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती, वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता। This is a reason eclipses does not occur on every new moon or full moon days. Before ending this topic, there is a tip for you.